Good afternoon, students. Myself Krati Khare, visiting faculty in Smriti College of Pharmacy. Till now we have done functions, composition function, operation on functions. Now our last topic of this unit 1 is limits and continuity. Okay, so our next topic is limits. What is limit? Limit means end point, last point. If limit can be written as limit x tends to a x tends to a x means होता है कि x की वैल्यू लास्ट में कहां तक जा रही है, x की वैल्यू लास्ट में a तक जा रही है, ना, लास्ट पॉइंट इज a। तो जब हमने इसमें लिमिट रख दी x की जगह a, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हो गई a। क्लियर? नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू a 2 minus x, suppose this, so this will be 2 minus a, क्योंकि x की जगह हमने a रखा। तो जो लिमिट होती है वो हमेशा वेरिएबल पर ऑपरेट होती है। किस वेरिएबल पर? जो आपको यहाँ पर लिखा रहता है। सपोज यहाँ होता y टेंड्स टू a और यहाँ कहीं y होता तो हम y की जगह a रखते। x टेंड्स टू a, तो जहाँ कहीं x है हम x की जगह a रखेंगे। क्लियर? तो लिमिट्स में जो भी आपको इंडिकेशन दिए जाते हैं, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ जो भी फंक्शन लिखा होगा उस फंक्शन में आप वो वैल्यू रखकर उसकी फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करोगे। क्लियर? इसकी डेफिनेशन की मैं पीडीएफ भेजूंगी, वो आपको लर्न करना है। नाउ इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं लिमिट्स के, जो मैं आपको लिखा रही हूँ। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ लिमिट। Standard results of limit. First is limit x tends to a f of x, okay, और into k। कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है फंक्शन में, तो जो रिजल्ट क्या होता है कि कांस्टेंट बाहर हो जाता है और लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन पर ऑपरेट हो जाती है। क्लियर? सेकेंड इज लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस g of x। इस पूरे फंक्शन पर जब लिमिट लगती है x टेंड्स टू a, तो रिजल्ट विल बी लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g of x। मीन्स इंडिविजुअल फंक्शन पर लिमिट ऑपरेट हो जाती है। गॉट इट? है ना? नाउ थर्ड वन इज सब्ट्रैक्शन, सो आई एम चेंजिंग हियर ओनली, दैट इज fx minus gx is limit fx extends to a minus limit x tends to a gx। clear? Next is multiply, so again I am changing here only. Now this operation is multiplication, fx into gx is limit x tends to a fx into limit x tends to a gx। got it? Clear all of you? And next one is, what is next one? Next one is divide, division। limit x tends to a fx divided by gx is limit fx extends to a divided by limit x tends to a gx, provided limit x tends to a gx is not equal to 0. Last time in functions I have told you that denominator should not be equal to 0, because if denominator becomes 0, then everything will be infinite. We cannot calculate it, it is uncountable. So limit gx extends to a should not be equal to 0. क्लियर है ना? अब मैं इसका आपको क्वेश्चन करके बताती हूँ, आप इसको कॉपी में नोट करिए सब लोग। क्वेश्चन इज evaluate
evaluate limit x tends to 1 x square plus 6x plus 4. Very simple. You all know now. 1 square plus 6 into 1 plus 4, that is 1 plus 6 plus 4, that is 11. Got it? है ना? Second is limit x tends to 2 under root 36 minus x square. Okay? So it is 36 minus 4 because 2 का square, x square is 2 का square. So 36 minus 4 is 32. So it is under root 32. Now what is under root 32? It is 4, 16, 2s are 32 and 16 का under root is 4. So it is 4 root 2. Clear? Clear how limit is operating here? Okay? Next. Next is limit x tends to 1 x cube minus 1 upon x minus 1. ओके, नाउ अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अब आपने यहाँ पर 1 रख दिया डायरेक्टली, तो इट इज 1 क्यूब माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1. सो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 दैट इज 0 अपॉन 0. ओके, now what will you tell about 0 upon 0? Is this 0 or it is 0 upon 0 is 1 or it is infinite? What is this? So might have you have heard about indeterminate form, है ना? एक indeterminate form कर एक टर्मिनोलॉजी होती है. तो indeterminate means वो जिसको कि डिटरमाइन नहीं करा जा सकता, जिसको निकाला नहीं जाता, वो होता है इंडिटरमाइन फॉर्म. तो इंडिटरमाइन फॉर्म में क्या होता है? 0 अपॉन 0, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन 0, 0 अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी. ये सब जो होते हैं ये इंडिटरमाइन फॉर्म होते हैं जिनको कैलकुलेट नहीं कर सकते. जब लिमिट्स में हम इस फॉर्म में आ जाते हैं 0 अपॉन 0, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन 0, 0 अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, जब हम इस फॉर्म में होते हैं तो निश्चित बात है कि हमको लिमिट्स में अब कुछ और करना है. अब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. क्लियर? तो हमको क्या करना है? तो इस केस में, ऐसे केसेस में हमको पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. If there is this indeterminate form, then we have to simplify the limits. We have to factorize it. We have to rationalize it. Okay? Then only we will put limit, whatever it is given. So, जब ये वाला स्टेप आ जाती है इंफिनिटी या 0 के फॉर्म की, तब हम लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन, rationalization, substitution का हम यूज करते हैं. These are the 3 methods which we are using while we are in the situation of indeterminate form. Okay? And fourth one is formula. कुछ लिमिट्स के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, वो हमको करने पड़ते हैं. बात क्लियर हुई कि हमें फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन और फॉर्मूला फॉर लिमिट्स, इसको यूज करके लिमिट को हमको सॉल्व करना होता है. ठीक है? मैं एक सम अभी फैक्टराइजेशन का बता रही हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे. अब ये जो सिचुएशन बनी है ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म की हो गई है, तो इसको हमको फैक्टराइजेशन
फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना है। कैसे समझ आएगा फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन इसलिए समझ आ रहा है कि एक्स क्यूब कैन बी रिटन एज x की पावर 3 माइनस 1 कैन बी रिटन एज 1 की पावर 3. So 1 cube, x cube minus 1 cube. So you have heard about a cube minus b cube. A cube minus b cube is what? A minus b, a square plus ab plus b square. This is formula for a cube minus b cube. So I am using this here only. Limit x tends to 1, x minus 1, x square plus x plus 1 square upon x minus 1. Now x minus 1, x minus 1 gets cancelled with each other. So what remain here? Here it is x square plus x plus 1. Okay, with limit x tends to 1. So now it is 1 plus 1 plus 1. So this is 3. तो एक वक्त क्या था जब हम डायरेक्ट पुट कर रहे थे 0/0 के फॉर्म में थे, पर जब हमने उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 3 एंड दिस इज द एक्चुअल एंड रियल मेथड। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी के थोड़े से फैक्टराइजेशन के सम सॉल्व कराऊंगी, प्लस हम नेक्स्ट जो रैशनलाइजेशन सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला मेथड है वो करेंगे और इसकी मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, आप पीडीएफ से इसको सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।